ان کی طرف توجہ ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، ہم بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ یہ ناانصافی کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں، آپ کو بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، قیامت میں مصطفیٰ کا بھی سامنا کرنا ہے، خدا کو بھی منہ دکھانا ہے۔ آج اگر بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی پیدائش پر دنیا بھر کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، بڑے بڑے لڈو بنوائے جاتے ہیں، پڑوس میں، رشتہ دار میں تقسیم کرائے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کے پیدائش کی خبر تک نہیں کی جاتی ہے۔ کئی جگہوں پر دیکھا گیا ہے، بیٹی کی پیدائش کی خبر تک نہیں کی جاتی ہے۔ یہ ناانصافی ہم بیٹیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور یہیں تک نہیں، اگر وہی بیٹی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ دیتی ہے تو اس کو جہیز دے کر کے ایسے رخصت کر دیا جاتا ہے جیسے اس کا اس گھر کے اندر ادھیکار ہی نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ ہم یہ بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، میری بات یاد رکھیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹا اور بیٹی دونوں دیا ہے تو اپنی زندگی کے اندر یہ آزما کر کے دیکھ لینا۔ اگر آپ کے سر میں درد ہو، ایک آواز دینا کہ میرے سر میں درد ہے، کوئی آ کر کے میرے سر کو دبا دے تو آپ کا بیٹا اپنے ہاتھ میں موبائل کو لے کر کے موبائل کو چلاتا رہے گا۔ لیکن وہی بیٹی جس کی پیدائش پر آپ نے خوشیاں نہیں منائی ہے، نہ جس کو آپ نے اچھی تعلیم دلائی ہے، نہ جس کو آپ نے اپنا زیادہ قریبی سمجھا ہے، اسی بیٹی کے کانوں سے جب یہ آواز ٹکراتی ہے، وہ بیٹی اچھل کے آتی ہے، آپ کے سر کو دبانا شروع کر دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، تم کس بیٹی کے ساتھ یہ ناانصافی کی ہے؟ تم نے کس کو ادنا سمجھ کر کے مدرسوں کے پیچھے پھینک دیا ہے؟ نبی کے غلاموں، ہم بیٹیوں کے ساتھ یہ ناانصافی کر رہے ہیں، بیٹیوں کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن برادران اسلام غور کریں، بیٹیاں بہت عظیم ذات ہوا کرتی ہیں، بیٹیوں کا مرتبہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی بیٹیاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بیٹوں سے بڑھ کر کے کام انجام دے دیا کرتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعے کے ذریعے بتاتا چلتا ہوں۔ ایک شخص تھا، بہت مالدار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 4 بیٹے عطا کیے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک بڑی بیٹی عطا کی تھی، تو اسے بیٹی کا ہونا بوجھ لگ رہا تھا، تو جلدی جلدی بیٹی کی شادی کر کے اس کا قصہ ہی ختم کر دیا گھر سے۔ اور 10 سال گزر گئے شادی کے بعد، کبھی بیٹی کے دہلیز پر قدم نہیں رکھا۔ یہ آج ہمارا معاشرہ ہے، اور ذرا سی بات سمدھی سے ہو جاتی ہے تو بیٹیوں سے رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ ذرا سی بات سمدھی سے ہو جائے، بیٹیوں کے گھر آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری عزت ختم ہو جائے گی ہم جائیں گے تو۔ جو اپنی موج کی خاطر اپنی بیٹیوں سے ناتا توڑے دیتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کون سا جملہ استعمال کروں۔ میں کہتا ہوں کہ اپنی موج کو اکھاڑ کر کے پھینک دو، ایسی موج کو جو بیٹیوں سے الگ کرے۔ ذرا سوچیں یار، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، 4 دن باپ کو نہ دیکھے بے چین ہو جایا کرتی ہے۔ اگر سسرال والے ایک دن پابندی لگا دے کہ مائکے نہیں جانا ہے، اسی وقت سے رونا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن اگر وہی بیوی اپنے شوہر سے ایک مرتبہ کہہ دے کہ آج کے بعد باپ کے ساتھ تمہیں بیٹھ کر کے نہیں کھانا ہے، تو شوہر اتنا فرما بردار بنتا ہے کہ 3 مرتبہ کہہ کر کے رکے گا، ہاں میری بیوی تو نے بہت اچھی بات کہی، اب باپ کے ساتھ بیٹھ کر کے نہیں کھانا ہے۔ 3 مرتبہ کہتی ہے الگ ہونے کے لیے، شوہر اتنا فرما بردار بن جاتے ہیں 6 مرتبہ کہہ کر کے رکیں گے، اب باپ اپنا دیکھیں گے، ہم اپنا دیکھیں گے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، بیویوں کے بھی حقوق ہیں، ان کے جو حق ہیں انہیں ادا کریں، لیکن والدین کو ستا کر کے کوئی حق ادا نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو غور کریں، 10 سال گزر گئے، کبھی بیٹی کے دہلیز پر وہ باپ قدم نہیں رکھا، نہیں گیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کی شادیاں کی، جب جائیداد تقسیم کرنے کی باری آئی، 4 بڑی بڑی میلیں عطا کی تھی پروردگار عالم نے، اپنے 4 بیٹوں میں ایک ایک میل تقسیم کر دیا، لیکن اپنی بیٹی کو کچھ نہ دیا۔
और 10 साल गुजर गए, कभी बेटी के दरवाजे पर भी नहीं गया। लेकिन इत्तेफाक देखिए, मर्जी कुदरत की कब क्या हो जाए ये कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। इत्तेफाक से उस बच्ची के बाप के पेट में दर्द उठा, तकलीफ महसूस हुई। लोग उसे चेक कराने के लिए हॉस्पिटल लेकर के गए। डॉक्टर ने चेक किया, चेक करने के बाद कहा, यार तुम्हारे गुर्दे फेल हो गए हैं, तुम्हारे दूसरे गुर्दे लगाने पड़ेंगे, तुम अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में हो। जैसे उसने इतनी बात सुनी, वो बहुत मालदार था, घमंड था अपनी अमीरी पर। डॉक्टर से कहता, डॉक्टर जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले ले, लेकिन कहीं से गुर्दों का इंतजाम कर दे। लेकिन मोहतरम हजरात, गुर्दों का अपना एक उसूल हुआ करता है। हर किसी का गुर्दा नहीं पड़ा करता है, बल्कि जब कोई अपना गुर्दा देता है तब जाकर के गुर्दा काम किया करता है। ये गुर्दे का अपना एक उसूल हुआ करता है। वो मालदार इंसान जब अपने की बात सुनता है, अपने चारों बेटों को बुलाता है। बुलाने के बाद कहता है, मेरे बेटों, मैं कुछ दिन और दुनिया में जीना चाहता हूँ, मेरे गुर्दे फेल हो गए हैं, तुम में से कोई भी मुझे एक गुर्दा दे दो ताकि कुछ दिन और मैं जिंदा रह सकूं। जब बेटों ने ये बात सुनी, चारों बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। कहा, मेरे बाप, तूने अपनी जिंदगी बसर कर ली है, अब हम गुर्दा दे करके अपनी जिंदगी के अंदर ऐब पैदा नहीं करना चाहते हैं। ये कह करके बेटों ने इनकार कर दिया। जब बेटों ने इनकार किया, वो मालदार इंसान डॉक्टर से कहता, डॉक्टर मुझे अंदर लेकर के चल, मेरा इलाज कर, अगर जिंदगी रहेगी तो मैं बच जाऊंगा, वरना फिर मर जाऊंगा। ये कह करके डॉक्टर उसे अंदर लेकर के गया है। और जैसे ही अंदर गया है, इधर रिश्तेदारी में बात फैल जाती है कि फला सेठ जो है वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में है, उनके गुर्दे फेल हो गए हैं। भाई बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है, अगर गुर्दे ना मिले तो मर जाएंगे। ये बात जैसे ही रिश्तेदारी में फैली है, ये बात चलते चलते बेटी के दहलीज पर पहुंची। बेटी ने सुना बाप के गुर्दे फेल हो गए हैं, भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है, अगर गुर्दे ना मिले तो बाप मर जाएगा। जैसे ही बेटी ने इतनी बात सुनी, बेटी के गोद में एक दूध पीता बच्चा था। बेटी ने अपने दूध पीते बच्चे को अपने सीने से लगाया और लगाने के बाद डायरेक्ट उसी हॉस्पिटल के अंदर पहुंची है जहां पर बाप को भर्ती किया गया था। जाकर के डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर क्या फला नाम का शख्स तुम्हारे हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है? डॉक्टर कहता, हाँ, फला नाम का इंसान मेरे हॉस्पिटल में भर्ती है। बच्ची कहती है, डॉक्टर जरा बता, मैं सुनी हूँ उसे गुर्दे की जरूरत है, उसके गुर्दे खराब हो गए हैं। डॉक्टर कहता, हाँ, उसके गुर्दे खराब हो गए हैं, उसको दूसरा गुर्दा लगाना पड़ेगा। बच्ची कहती है, डॉक्टर फिर देर मत कर, मेरा गुर्दा निकाल और उसके अंदर गुर्दा डाल दे। डॉक्टर कहता है, बेटी बता तू कौन है? बच्ची कहती है, डॉक्टर नाम ना पूछ, कहीं नाम के चक्कर में देर ना हो जाए। डॉक्टर कहता, बेटी पहले पता बता, उसके बाद मैं गुर्दा निकालूंगा। बच्ची कहती है, डॉक्टर मैं उसके दूर की रिश्तेदार लगती हूँ, डॉक्टर अब जल्दी कर, मेरा ऑपरेशन कर, मेरा गुर्दा निकाल और उसके अंदर गुर्दा डाल दे। ये कह करके डॉक्टर उस बच्ची का ऑपरेशन करता है, गुर्दा निकालता है। निकालने के बाद उसके बाप के अंदर गुर्दा डाल देता है। वक्त गुजरते गए, जब बच्ची शिफायाब हुई है, जब हॉस्पिटल से जाने लगी है, डॉक्टर कहता है, ए बेटी तू जा रही है, जाने से पहले पहले अपना पता बताती जा, अपना नाम बताती जा। अगर ये पैसे वाला बाहर आएगा और मुझसे गुर्दों के बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या बताऊंगा? ए बेटी अपनी पता बताती जा। बच्ची कहती है, डॉक्टर मुझसे मेरा नाम ना पूछ, अगर हो सके तो एक कागज और कलम दे दे। डॉक्टर इतना सुनता है, कागज कलम देता है। बच्ची ने खत लिखा, लिखने के बाद उसको फोल्ड करती है और उसके बाद डॉक्टर को दे करके कहती है, डॉक्टर इस खत को खोल करके मत पढ़ लेना, और जब ये पैसे वाला जब शिफायाब होकर के बाहर आए और जब गुर्दों के बारे में पूछे तो पूछने के बाद इस खत को देना है, अगर नहीं पूछेगा तो इस खत को मत देना।
ये कह करके बेटी अपने बेटे को लेकर के चली जाती है। अब जब वो पैसे वाला शिफायाब हुआ है, जब उसको लेने के लिए उसके रिश्तेदार आए हैं, कहते हैं चलो घर चलो, वो कहता है पहले मुझे डॉक्टर के पास लेकर के चलो। वो लोग कहते हैं क्या करने के लिए डॉक्टर के पास जाओगे? वो पैसे वाला कहता है ये डॉक्टर ही की मेहरबानी है जो आज मैं जिंदा हूँ। मेरे अपनों ने तो गुर्दा देने से इनकार कर दिया था, ये डॉक्टर की शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूँ। ये कह करके वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से कहता है ए डॉक्टर, मैं तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूँ, मैं तेरा एहसान कैसे जताऊँ? डॉक्टर कहता है ओ यार, शुक्रिया मेरा अदा ना कर, अगर शुक्रिया अदा करना है तो उस बच्ची का शुक्रिया अदा कर जो तुझे गुर्दा दे करके गई है। वो पैसे वाला कहता है ए डॉक्टर बता तो सही, मेरे अपनों ने तो गुर्दा देने से इनकार कर दिया था, फिर कौन है जो मुझे गुर्दा दे करके गई है? डॉक्टर कहता है ए फला शख्स, मुझे नाम नहीं पता है। वो कहता फिर पता तो बता दे कि वो कहाँ की रहने वाली है, कहाँ पता भी नहीं मालूम है। पैसा वाला शख्स कहता है ए डॉक्टर याद कर, कुछ तो बताया होगा। डॉक्टर कहता है हाँ मुझे याद आया, जब वो बच्ची गई थी तो मुझे एक खत दे करके गई थी। डॉक्टर दराज खोलता है, खत को निकालता है, निकालने के बाद उसके बाप को खत देता है। जब वो पैसे वाला उस खत को पढ़ता है, उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं, उसके जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है, वो जमीन पर बैठ जाता है। डॉक्टर कहता है यार बता तो सही, ये खत किसका है और इस खत के अंदर ऐसा लिखा क्या है जिसको पढ़ने के बाद तेरे आंखों से आंसू आ गए हैं, जिस्म में कपकपी तारी हो गई है? वो इंसान कहता है डॉक्टर, मेरे अंदर बताने की हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर ताकत नहीं है बताने की। डॉक्टर कहता है यार मेहरबानी कर दे, मैं इस खत के अंदर लिखे हुए तहरीर को सुनना चाहता हूँ, जरा पढ़ करके सुना दे। वो पैसे वाला इतना सुनता है, खत को खोलता है, उसके बाद उस खत को पढ़ना शुरू करता है। खत के अंदर बच्ची ने लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद बच्ची ने लिखा था कि एक नाराज बाप की बारगाह में एक मजबूर बेटी का सलाम कबूल हो। उसके बाद बच्ची ने लिखा था मेरे बाप, मेरे शादी को 10 साल गुजर गए, लेकिन आज तक तुम मेरे दरवाजे पर तुमने कदम नहीं रखा। मेरे बाप, मेरी खता क्या है, मेरी गलती क्या है, मुझे ये नहीं मालूम है। मेरे बाप 10 साल गुजर गए मेरी शादी को। मेरे बाप जब दुनिया ईद का चांद देखने के लिए छत पर चढ़ा करती थी तो तेरी बेटी आकर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और इस उम्मीद से आकर के खड़ी होती थी कि शायद इस बार मेरा बाप आता होगा, शायद इस बार मेरा बाप आता होगा। मेरे बाप 10 साल में दुनिया ने नए कपड़े पहने हैं, उतार दिए हैं, लेकिन तेरी बेटी ने ईद नहीं देखी है। ऐ मेरे बाप, मेरी खता क्या है, मुझे ये नहीं मालूम है। मेरे बाप, तूने जायदाद तकसीम कर दी, अपने 4 बेटों में जायदाद तकसीम की, अपने चारों बेटों को मिली अदा कर दी, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। मैं इसकी शिकायत नहीं करती हूँ मेरे बाप कि तूने मुझे जायदाद क्यों नहीं दी। मेरे बाप, शायद तू मुझे इस लायक नहीं समझा होगा जो तूने मुझे जायदाद नहीं दी। ए मेरे बाप, अगर तूने जायदाद नहीं दी तो क्या हुआ, 18 साल मुझे सीने से लगा करके पाल लिया था, क्या ये कोई एहसान से कम था? 18 साल बेटी कह करके पुकारा था, क्या ये किसी एहसान से कम था? ऐ मेरे बाप, 18 साल के रुकने के बदले में अगर जान भी मांगोगे तो मैं बेटी हूँ बाबा, हंसते हंसते अपनी जान को कुर्बान कर दूंगी, लेकिन इनकार नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद बच्ची ने लिखा था ऐ मेरे बाप, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं गुर्दा दे करके जा रही हूँ, तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, लेकिन ऐ मेरे बाप, मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर मेरी तेरी जिंदगी के अंदर मेरा इंतकाल हो जाए तो आकर के मेरे जनाजे को कांधा दे देना, इसलिए कि अगर जनाजा मेरा हो और कांधा तेरा ना हो तो दुनिया मुझे बदनसीब कह करके पुकारेगी, और अगर जनाजा मेरा होगा और कांधा तेरा होगा तो देखने वाले बदनसीब नहीं कहेंगे, बल्कि यही कहेंगे कि वो देखो बदनसीब बेटी का नहीं बल्कि
खुश नसीब बेटी का जनाजा गुजर करके जा रहा। ये बेटियां हुआ करती हैं, लेकिन इन्हीं बेटियों को हम पराया कर दिया करते हैं। शादियां होती हैं, मायके वाले खुश हो जाते हैं, ससुराल वाले कि नौकरानी मिल गई है। मायके में अगर इधर बाप का इंतकाल हो गया तो बच्चियां बिल्कुल पराया हो जाया करती हैं। ना भाई साथ देते हैं, ना भाभियां साथ देती हैं, ना ससुराल वाले साथ देते हैं। जब बहनें आती हैं तो भाभियां तेवर बदल करके चेहरा देखा करती हैं, तू क्या लेने आ गई है, तेरे आने से घर का सुकून खत्म हो जाया करता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, किसी न कोई अपनी बेटी का बाप होगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 10-20 बीघे जमीन का मालिक बनाया है तो पूरी जायदाद बेटों के नाम मत कर देना, बल्कि उसमें से कुछ ना कुछ अपनी बेटियों को भी दे करके मरना। बेटी की जायदाद खा करके मर जाते हैं, 3-3 4-4 हज करने चले जाते हैं। ये याद रखें, हमारे आपके जायदाद में बेटियों का भी हक होता है। अगर उनके हक को अदा नहीं करेंगे तो कयामत के दिन आपके गिरेबान को पकड़ लेंगे। ये याद रखिएगा, ये शरीयत में है। तो इसलिए जरूरी है कि जब आपके इंतकाल के बाद अगर आपकी बेटियां आपके घर के अंदर दाखिल हो तो उनके घर में आंखों में आंसू ना आने पाए। उनके इसलिए जाने से पहले कम से कम अपनी बेटियों को एक कमरा दे करके चले जाना, ताकि उस घर में आए तो किसी के ताने ना सुनने पड़े, किसी के ताने ना सुनने पड़े। जब सुकून से बैठा करे तो उसके हाथ उठ जाया करे और कह दिया करे, ऐ परवरदिगारे आलम, मेरे बाप ने इस घर के अंदर मेरे सुकून की जगह छोड़ दी है। ऐ परवरदिगारे आलम, मेरे बाप की कब्र पे आसानियां पैदा फरमा दे। इसलिए जरूरी है अपनी बेटियों को 10-20 बीघे जमीन का मालिक अगर अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है तो अगर बेटियां आए तो सादा कागज मत मंगवा लेना। बेटियों से छुप करके जमीन के कागज पर बेटों के अंगूठे मत ले लेना, बल्कि जो बेटों का हक है वो बेटों को दे करके मरना, और जो बेटियों का हक है वो बेटियों को दे करके मरना। कसम खुदा की मुसलमानों, अगर आप ऐसा करके जाओगे तो तीजा 40वां बाद में होगा, दरूद बाद में होगी, आप कब्र में बाद में जाएंगे, मदीने वाले आका आपके कब्र में पहले आ जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है आप दिगर खुराफात वाले कामों से बचें और जो भी बच्चियों से मोहब्बत करें, उन्हें पराया ना समझें, और जो भी जायदाद में उनका हक है उसे दे करके मरे। बस मेरे बोलने में और आप तमामी हजरात के समात में जो भी गलतियां हुई हो, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम उसे माफ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।